پتہ کیا ہے، ہم دعائیں تو مانگتے ہیں پر وہ لذت نہیں لیتے جو ہمیں لینی چاہیے. ہم دعا تو مانگتے ہیں پر وہ سرور حاصل نہیں کر پاتے جو ایک بندے کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں نصیب ہوتا ہے. رسمی سا انداز ہوتا ہے، روٹین کی باتیں ہوتی ہیں، بعض جگہ تو رٹی رٹائی دعائیں ہوتی. حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جن کو رب کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے انہیں اپنا گہرا دوست بنایا، وہ اپنے رب کے حضور دعائیں مانگتے ہیں. یہ دعا اتنی انوکھی، اتنی پیاری، کاش آپ اس پر غور کریں کہ یہ دعا مانگنا رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے. 2-3 مقام قرآن پاک کی عرض کرتا ہوں. پہلے دیکھیے سورہ بقرہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل اینٹیں اٹھا کے لاتے ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام دیواروں پہ لگا کے دیواروں کو بلند کرتے ہیں. او دیکھو مسجدیں بنانے والوں، اللہ کے گھر تعمیر کرنے والوں، ذرا اپنی شان تو دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح تم کس کی سنت کا تتبع کر رہے ہو. تم دیکھو تم کس صف میں کھڑے ہو جس صف کی امامت جناب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں. حضرت ابراہیم کعبے کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی ہے. مالک کریم کو وہ بات اتنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی کہ قرآن میں بیان کیا، فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، فرمایا جب اٹھاتے تھے نا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل اس گھر کی دیواریں، جب وہ اس کی دیواریں اٹھا رہے تھے، بنیادیں بلند کر رہے تھے، تو پتہ ہے ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا. ساتھ دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ یہ ہم سے قبول فرما لے. اللہ ہم نے کوشش کی تیرا گھر بنانے کی، ہم نے جد و جہد کی اس کی بنیادوں، ربنا تقبل منا، اللہ اسے قبول فرما لے. اصل قابلیت نہیں ہوتی، اصل تو قبولیت ہوتی ہے. دعا فرماؤ قبولیت نصیب ہو. ہم کوئی عمل کریں تو اس کی بارگاہ میں وہ قبول ہو. دعا مانگ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے قبول فرما، اس لیے کہ انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. اور پھر اس کے ساتھ اور دعا مانگتے ہیں. پیغمبر ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ہے. ان کی عبادتیں، ریاضتیں، ان کی جد و جہد، ان کی تبلیغ، ان کی کوششیں اللہ کو پسند ہے. اور وہ اس مقام پر فائز ہے کہ رب کریم نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا ہے. پھر بھی کہتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بارگاہ کا فرما بردار رکھنا، ہمیں گردن جھکانے والا بنانا، ہم تیرے حضور جھکے رہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں بھی ایک امت کو اپنی فرما بردار رکھنا، آنے والی نسلیں بھی تیری فرما بردار رہیں. دعا کیوں نہیں مانگتی امت یہ کہ یا اللہ ہماری اولادیں بھی تیری فرما بردار؟ ہر وقت ان کے لیے رزق ہی مانگتے ہو، صحت ہی مانگتے ہو، اچھا کاروبار ہی مانگتے ہو. یہ دیکھو جناب ابراہیم کیا مانگ رہے، کہتے یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار رکھنا، یہ تیرے نافرمان نہ ہو. اتنا مقام ہے، مرتبہ ہے، پھر بھی کہتے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، یا اللہ ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سکھا، یا اللہ ہمیں سکھا کس طریقے سے تیری عبادت کریں تو راضی ہوتا ہے. آج نا سب سے مشکل کام سیکھنا ہے. آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے، سارے سیکھے ہوئے اللہ ماشاءاللہ. جس سے پوچھیں گے وہ کہتے ہیں اوہو تعلیم یافتہ ہو، پڑھا لکھا ہو، سند یافتہ ہو، تجربہ کار بھی ہو، اتنے سال ہو گئے فلاں کام کرتے ہو. آپ یہ دیکھیں سیکھنا کتنا اہم ہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، تو ہمیں سکھا ہم کس طرح تیری عبادت کریں. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اپنی رحمت سے ہمارے اوپر رجوع بھی فرما، کرم فرما مالک، ہم پر رجوع فرما. اتنے بڑے ہیں حضرت ابراہیم خلیل، پر دعا مانگ رہے یا اللہ ہمیں فرما بردار بنا، اپنی عبادت کے طریقے سکھا.
تو وہ جو لوگ جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ بس ہم سب کچھ سیکھ چکے ہیں, ہم تو فارغ التحصیل ہیں, ہم تو بڑے قابل ہو گئے, اوہو ہم سے سیانا بھی کوئی دوسرا ہوگا, وہ ذرا اس سے سیکھے نا. یہ حضرت خلیل علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں. پھر آگے فرمایا انک انت التواب الرحیم, بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے. پھر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ بھیج دے ہم میں سے اپنا عظمت والا رسول. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے آخری رسول ہیں انہیں بھی انہی میں سے بھیجنا, یعنی میری اولاد میں سے کرنا آخری نبی کو. خود رسول کریم نے فرمایا ہے, حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری پیدائش کے وقت انہوں نے دیکھا تھا اور شام کے محلات روشن ہو گئے تھے. حضور فرمانے لگے میں جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں اور میں جناب ابراہیم کی دعا ہوں. میں دعا ہوں جناب ابراہیم کی دعا بن کے آئے ہوں حضرت خلیل اللہ. میں وہ ہوں جن کے لیے جناب خلیل نے دعا کی, ربنا وابعث فیہم رسولا. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کعبہ بنا کے جناب ابراہیم کا یہ دعا کرنا معنی کیا ہے, مالک میں نے بنا دیا ہے, اسے آباد کرنے والا رسول بھی عطا فرما. تڑپے گی محبوب کی امت بیت اللہ دیکھنے کو, دعائیں مانگے گی, یوں گھومے گی بیت اللہ کے گرد جس طرح پروانہ شمع کے گرد گھومتا ہے, نظریں دیکھ دیکھ کے بیت اللہ کو ٹھنڈی ہو. ربنا وابعث فیہم رسولا, اے اللہ ان میں وہ رسول بھیج دے, وہ محبوب آئیں تو کیا کرے. اے اللہ جب وہ آئیں منہم انہی میں سے آئیں, یتلو علیہم آیاتکا, اور وہ آ کر ان پر تیری آیتیں پڑھیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, انہیں کتاب بھی سکھائیں اور پختہ علم بھی سکھائیں, دانائی بھی سکھائیں. وَيُزَكِّيهِمْ, بڑوں نے ترجمہ کیا ہے پر جو ترجمہ فاضل بریلوی نے کیا ہے وَيُزَكِّيهِمْ, اے اللہ وہ محبوب تیرے آئے اور انہیں خوب ستھرا کر دے, خوب ستھرا کر دے, ان کے دلوں کو صاف کر دے, باطن کا تزکیہ کر. یہ دعائیں کر رہے ہیں جناب ابراہیم. انک انت العزیز الحکیم, بے شک مالک تو غالب حکمت والا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں, قبولیت کی دعا مانگتے ہیں, اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اللہ آخری پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرما تاکہ وہ کتاب و حکمت سکھائیں, تاکہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں. اے اللہ رسول کریم علیہ السلام عطا فرما جو دلوں کا تزکیہ کرے. اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی, وہ رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. اب ہمیں حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کتاب و سنت سیکھنا چاہیے نا. حضور نے جو خوبصورت ارشادات کر کے ہمارا تزکیہ کیا ہے ہمیں وہ یاد رکھنے چاہیے نا, دلوں میں بسانے چاہیے نا. تو ایک مقام تو وہاں سورہ بقرہ میں اور دوسرا مقام سورہ ابراہیم میں. یہ سورہ ابراہیم ہے, مالک کو پیار اتنا ہے, جگہ جگہ بھی ذکر کیا ہے قرآن پاک میں جناب ابراہیم کا, اور ایک پوری سورت کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے. اتنی محبت ہے حضرت خلیل اللہ سے رب کریم کو. یہاں بھی دیکھیے حضرت ابراہیم سورہ ابراہیم میں دعا مانگتے. اب ذرا یہ دعا بھی دیکھیں کتنی معنی خیز ہے. فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا, یاد کرو جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. جناب ابراہیم علیہ السلام مکے میں نہیں رہتے تھے پر دعائیں مکے کے لیے مانگ رہے ہیں. اے اللہ اس شہر کو امن والا. پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مکے مدینے میں ہمیشہ امن ہی رہے, اللہ اسے امن والا بنا دے. ایک بات آپ کو عرض کروں, جس ملک میں امن نہیں ہوتا وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک امن نہ ہو نہ تجارتوں کا مزہ ہے نہ عبادتوں کا مزہ ہے. کام کاج بھی تبھی ہوتا ہے جب امن ہو, عبادت ریاضت تبلیغ تعلیم تبھی ہوتی ہے جب امن ہو. یہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر حضرت خلیل علیہ السلام
क़याम अमन की ज़रूरत के बारे में किस तरह बयान फरमाते हैं। कहते हैं ऐ अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। जब तक अमन नहीं होगा, जब तक इत्मीनान नहीं होगा, ठहराव नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमानों को मिल के कोशिश करनी चाहिए कि हर मुसलमान मुल्क के अंदर अमन रहे। हमें कोशिश करनी चाहिए हमारे शहरों में, इलाकों में अमन रहे। ढेर सारे लोग हैं जिनको अमन पसंद नहीं होता, बदअमनी पैदा करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देख लें, ये गिबतें करने वाले, चुगलियां करने वाले, एक दूसरे के बारे में साजिशें करने वाले, शरारतें करने वाले, ये सारे बदअमनी फैलाना चाहते हैं। और जनाब इब्राहीम क्या कहते हैं, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलदा आमिना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे। वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम। अल्लाह मुझे और मेरे बेटों को बुतों के पूजने से बचा ले। दुनिया में वो बंदा बच गया जिसका अकीदा महफूज हो गया। सबसे ज्यादा कीमती खजाना उस बंदे के पास है जिसकी औलाद के अकीदे ठीक है, जो इस्लाम पर पुख्ता है। आज मुल्हिद आ गए हैं, मुल्हिद बेदीन, जो ज़हनों में सवाल छोड़ते हैं माज़अल्लाह, हमारी नई नस्ल को गुमराह करना चाहते हैं, दीन से दूर करना चाहते हैं। अपने बच्चों के करीब बैठा करो, इनकी बातें सुना करो, इनकी सोचें देखा करो। थोड़े दिन पहले एक बच्चा मुझे पोस्ट दिखाने लगा, कहने लगा ये देखे एक बंदे ने पोस्ट की है, करोड़ों अरबों रुपया तुम जानवरों को कुर्बान करने पे लगा देते हो, ये गरीबों को दे दो, लोगों के घर बन जाए, बच्चियों की शादियां हो जाए। पता नहीं लोगों को हर दीनी काम पे गरीब क्यों याद आ जाते हैं। मैंने उन्हें कहा मैं देहाती आदमी हूं, हमारे डेरे के साथ एक डेरा होता था, चाचा जी बशीर साहब ने ना हर साल वो बैल पालते थे बेचने के लिए, गरीब आदमी था, और कहा करता था इस दफा मेरे जानवर बड़े अच्छे हैं, ये सही बिक गए तो 2 बेटियों की शादी करूंगा। पाल कर बेचने वाले भी गरीब कम हैं, जो कारोबार करते हैं, बड़े फार्म बनाते हैं, पाल कर बेचने वाले भी गरीब। और जो कसाई ज़िबा करते हैं वो कौन होते हैं? ओ मीरा सारे बड़ा गोश्त बांधे, कहते डॉक्टर डकिया है, वो तो खाएंगे मुर्गी या बकरा, तो ये जिन्ने बैठे पलदे जे माड़े ही खाने ने। इसलिए ये जो रोगन ख्याल है ना, कहते हैं कुर्बानी ना करो, गरीबों को दे दो, उनको फिक्र ना करो, ये गरीबा ही खानी है सारी। अमीरा नु ते बंद है सारे नु, जिससे पूछो कहते मैंने डॉक्टर ने बंद किया है, तो भाई गरीबों का खुला है अल्लाह के फजल से, वो इंशाल्लाह खाएंगे, बल्कि उनके लिए सही करके खुलता ही बड़ी ईद वाले दिन है। तो आप उनका भी बंद करना चाहते हैं। इसलिए हजरत इब्राहीम की ये दुआ कि या अल्लाह बुतों से हमें बचा, हमारी औलादों को बचा, वो तो बचे हुए थे। ये दुआ ही हमारी तालीम के लिए, बच्चों की निगरानी करो, इनका ख्याल रखो, ये किसी बेदीन बदअकीदा के पास न जाए। इनकी जुबानों पे जब भी नाम आए या खुदा का जिक्र करें या मदीने वाले पे दरूद व सलाम पर। ये कभी जनाब अबू बकर की बात करें, ये कभी उमर की बात करें, ये कभी सैयदना उस्मान की करे, ये कभी मौला अली की करे, ये बार बार कहे क्या बात रजा उस शमनिस्तान ने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। बार बार बात करे हुजूर की औलाद। तो अजीज भाई, हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे भी और मेरी औलाद को भी बुतों से बचा, बुरे लोगों से बचा, गंदे अकीदे वालों से बचा। फिर फरमाया रब्बी इन्नहुन्ना अदललना कसीरम मिनन नास। ये देखो बुतों की बात हो रही है, लोग कहते हैं फलां के पीछे बड़े लग गए। हजरत इब्राहीम तो कह रहे हैं अल्लाह इन बुतों ने बड़े लोगों को गुमराह कर दिया है। गुमराही वैसे ही जल्दी दिल के अंदर जगह पकड़ती है, शैतानी बातें वैसे ही जल्दी समझ में आती है लोगों। ढेर सारे रब्बी इन्ना हुन्ना अदललना कसीरम मिनन नास। ऐ अल्लाह इन बुतों ने एक बहुत बड़ी जमात को गुमराह कर दिया। तो जो बोलते नहीं थे बातिल, जो बातिल बोलते नहीं थे, उन्होंने बड़े गुमराह किए, तो जो बोलने वाले हैं वो देखे कितनों को गुमराह करेंगे। इसलिए हजरत इकबाल बोले, कहने लगे ये दौर भी अपने इब्राहीम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है।
सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। और फरमाते हैं बहार हो के खिजा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों पे, पर मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ये गवाही देते रहेंगे अल्लाह की तौहीद। कसीर लोगों को इन्होंने गुमराह कर दिया। एक और जरा अनोखा अंदाज देखिए जनाब इब्राहिम का। फरमाते हैं फमन ताबिअनी फइन्नहु मिन्नी। या अल्लाह जो मेरी पैरवी करे वो तो मेरा है। तो ऐ कलीम जो आपकी पैरवी ना करे, अंदाज देखिए। फमन ताबिअनी फइन्नहु मिन्नी, जो मेरी पैरवी करे मालिक वो मेरा है। वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। और अल्लाह जो मेरी नाफरमानी करे ना, इब्राहिम उसके साथ क्या करें जो आपका नाफरमान है। फरमाया फइन्नका गफूरुर रहीम, बेशक तू बड़ा बख्शने वाला माफ करने वाला है। जो फरमा बरदारी करे वो तो मेरा है, और मालिक जो नाफरमानी करे तू बड़ा मेहरबान है, तू माफ करने वाला है। यहाँ हम कहते हैं जो नाफरमानी करे, जो हमारा नाफरमान हो वो किसी काम का नहीं, मारो सजा दो। फरमाया जो मेरा नाफरमान, मालिक तू गफूरुर रहीम है, तू मेहरबानी करने वाला है। आप यकीन करें मर जाने को जी चाहता है। जनाब इब्राहिम की दुआएं, फमा रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी कुछ औलाद को ना एक ऐसी वादी में ठहराया है जहां खेती नहीं होती, जो सरसब्ज़ो आबाद नहीं, बंजर जमीन है, वहां मैंने ठहराया है। पर इंद बैतिकल मुहर्रम ठहराया है तेरे हुर्मत वाले घर के पास। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हो गया कि बेटे को और बीवी को बैतुल्लाह छोड़ आओ। औलाद बुज़दिल कर देती है भाई। चंद सालों के लिए परदेश लोग जाते हैं तो रोते हुए जाते हैं। गैर मुइना मुद्दत के लिए जनाब इब्राहीम अपने लख्ते जिगर को, और बेटा भी आम नहीं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम तुम्हें सोने थे कि उन जैसा खूबसूरत कोई नहीं। जनाब हाजरा को और बेटे को थोड़ी सी खजूरें दे के, मिश्कीजा पानी का दे के बैतुल्लाह के पास भी वादिन गैरि ज़ी ज़रइन, कुरान कहता है ऐसी वादी जहां खेती नहीं होती, बंजर जगह छोड़ा जनाब इब्राहीम ने। पलटने लगे तो जनाब हाजरा दामन थाम के कहने लगी बेटे को छोड़ के जा रहे, पुत्र को छोड़ के जा रहे, मुझे छोड़ के जा रहे। हजरत इब्राहीम चुप है। मेरी बहनों, अपने शौहरों से सवाल पूछने वालियों, नहीं होते कुछ सवालों के जवाब शौहर के पास। अपने बुजुर्गों से सवाल पूछने वाले बेटों, नहीं कुछ सवालों के जवाब होते। रोज अपने बड़ों को कटहरे में खड़े करने वालों, कुछ सवालों के जवाब न पूछा करो। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनके बारे में ना गुफ्तगू करो। पूछा खातून ने क्यों छोड़ के जा रहे हो। जनाब इब्राहीम चुप है। फिर पूछा क्यों छोड़ के जा रहे हो। वो खामोश है, क्योंकि बात ही बड़ी अनोखी है। बेटे को छोड़ आना, बीवी को छोड़ आना ऐसी जगह जहां खेती कोई नहीं, पानी कोई नहीं। फिर हजरत हाजरा खुद ही बोली, फरमाने लगी आप छोड़ के जा रहे हैं, यह रब का हुक्म है। तो हजरत खलील कहने लगे हाजरा अल्लाह का हुक्म है। तो तसल्ली हजरत इब्राहीम ने देनी थी ना कि हाजरा फिक्र न करना, रब का हुक्म है, तो घबराना ना, यहाँ खैर होगी। जब हजरत हाजरा ने सवाल का जवाब लिया अल्लाह का हुक्म है कि अल्लाह का हुक्म है, अब हजरत हाजरा बोलती है और जनाब खलील से अर्ज करती है हमारी फिक्र न करना, इसलिए कि जिस रब ने कहा है ना यहां छोड़ जाओ, वो बड़ा करीम है, वो हमें जाया कभी नहीं करेगा। ओ कर तो सही ना तू ये भरोसा अपने रब। सीख जनाब इस्माइल की वालदा जनाब हाजरा से, सीख जनाब हाजरा से अल्लाह पे भरोसा करना। अल्लाह कभी हमें जाया। पानी खत्म हो गया थोड़ी देर में, मिश्कीजे का खजूरें खत्म हो गई। बेटा प्यास से जमीन पर एड़ियां मारता, जनाब हाजरा दौड़ के इधर जाती सफा पे, फिर दौड़ के मरवा पे, फिर सफा पे, फिर मरवा पे, 7 चक्कर लगाए। फरिश्ते ने आके उस जगह पर मारा जहां जनाब इस्माइल की एड़ियां लगती थी। जमजम जारी हो गया। मालिक हो गया एक दफा जनाब हाजरा का जाना आना। तो करीम ने फरमाया मेरा कलीम छोड़ आया,
मेरी प्यारी बंदी हाजरा उसके कहने पे वहां रुक गई। दुखों के दिन थे, तकलीफों के दिन थे, मेरी रिजा पर वो ठहर गए, सब्र किया। अब देखो ना, कयामत तक मेरा इनाम देखो। हाजरा तो पानी के लिए दौड़ी थी ना, सलामुल्लाह अलैहा, तो वो सामने पानी का कूलर लगा है, ठंडा भी है और सादा भी है, लेकिन मालिक फरमाता है हाजियो दौड़ो, दौड़ो मरवा पे, दौड़ो सफा पे। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफा और मरवा अल्लाह की निशानियां हो गई। तो रब की रिजा पे सब्र करना, और सब्र करके तुझे थोड़ी सी मुशक्कत करनी भी पड़ी ना, तो मालिक का इनाम देख। कयामत तक जो उमरा करना जाएगा, हज करने जाएगा, पानी सामने पड़ा है पर दौड़ना पड़ेगा। दौड़ो मीलैन अख्तरैन, दौड़ो इनके बीच। क्यों? पसंद आ गई है ना जनाबे हाजरा की अदा, पसंद भा गई है जनाबे हाजरा की अदा, कमाल कर दिया जनाबे हाजरा ने। ये इश्क और मोहब्बत का सफर होता है, सारा हज का सफर, सारा वारफ्तगी का सफर है, अल्लाह वालों की यादों का सफर। हजरत इब्राहिम जब छोड़ आए ना, तो औलाद औलाद होती है ना, छोड़ आए बेटे को, पर खेती कोई नहीं थी, बगैर पानी के बच्चे को छोड़ आए। हज पे भी जाते हैं लोग तो पड़ोसियों को भी कहते हैं जरा ध्यान रखिया जे। 100 किस्म की बातें, लोग बच्चे बच्चे होते हैं ना, औलाद औलाद होती, छोड़ तो गए, पर फिर हजरत कलीम एक कोने में बैठ गए और कहने लगे रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादि गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी औलाद में से कुछ को ना उस वादी में ठहराया जहाँ खेती नहीं होती, सब्जा नहीं होता, फल नहीं, पर इंद बैतिकल मुहर्रम ठहराया मैंने तेरे घर के पास है। ओ बेटो बेटियों, देखो माँ बाप का प्यार कैसा होता है ना, मैंने ठहराया है वहां। मालिक, एक दुआ है तेरे खलील की, रब्बना युकीमुस्सलात, ऐ अल्लाह मैं चाहता हूं ये नमाज कायम करे। पहली बात नमाज की, मैं चाहता हूं मेरे बच्चे नमाजी हो, सवेरे उठे तेरे हुजूर सजदा रेज हो, वुजू करें, इबादतें करें, रियाजतें करें। अगली बात बड़ी अनोखी है, फरमाया फजअल अफइदतम मिनन नासी तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह लोगों के दिल इनकी तरफ माइल कर दे, दुनिया मेरे बच्चों से प्यार करे, लोग औलादे इस्माइल से प्यार करें, इनकी तरफ लोगों के दिल फेर दे। क़यादतों का हर दिल अजीज होना बड़ा जरूरी होता है। जिस्मों पे हुकूमत कोई हुकूमत नहीं होती, इंसान के जिस्मों पर, वजूद पर हुकूमत करना कोई कमाल नहीं, असल कमाल उनका होता है जो दिलों पर हुकूमत करता। दिल झुके चले जाते हैं, तबीयतें बड़ी चली जाती हैं, आंखों पे पट्टी भी बांध दे तो महबूब के दरवाजे की तरफ इंसान बढ़ता ही चला जाता है। कहा लोगों के दिल फेर दो इनकी तरफ, लोग इनसे प्यार करें। हर साल दुनिया कुर्बानी करती है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हद बंदी, या रसूलल्लाह कुर्बानी क्या है? फरमाया जनाब इब्राहिम का तरीका। हर साल जिक्र होता है जनाब इब्राहिम, हर साल जिक्र होता है हजरत इस्माइल, हर जगह जिक्र होता है जनाब याकूब का, जनाब यूसुफ का। अपनी औलाद के लिए दुआ मांगा करो, रब लोगों के दिलों में इनकी मोहब्बत पैदा फरमाए। बंदा अच्छा लगता है, वो बंदा प्यारा लगता है जो औलाद से प्यार करे, उससे प्यार हो जाता है जो बच्चों से प्यार करे। अल्लाह इनकी तरफ लोगों के दिल फेर दे, पहले नमाजी बना दे, फिर इन्हें हर दिल अजीज बना दे। अब हजरत इब्राहिम कहते हैं वर्जुकहुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून, या अल्लाह इन्हें फलों में से रिस्क भी दे ताकि ये तेरा शुक्र अदा करें। अल्लाह इन्हें रिस्क भी अता फरमा, इन्हें फलों में से रिस्क भी दे। औलाद के लिए दुआ मांगा करो, इन्हें अल्लाह रोजी दे वसी, औलादे किसी की मोहताज ना हो, बच्चे किसी के दस्ते नगर ना हो, किसी के हाथ ना देखने पड़े, किसी की तरफ बढ़ना ना पड़े। आगे इरशाद फरमाते
फरमाते रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन। हजरत इब्राहीम ने बात ही खोल दी, फरमाया ऐ रब तू जो हम जाहिर करते हैं वो भी जानता है और जो हम छुपाते हैं वो भी जानता है। वमा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। अल्लाह पर कोई चीज छुपी हुई नहीं, ना जमीनों में ना आसमानों में। फिर औलाद के लिए दुआ मांगी जा रही, उस शहर के लिए भी दुआ मांगी जहां बच्चे रहते, यहाँ अमन रहे। ये भी दुआ मांगी कि ये नमाजी हो जाए। ये भी दुआ मांगी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह इन्हें रिस्क दे फलों में से। ये भी दुआ मांगी लोगों के दिल इनकी तरफ कर दे। और फिर कहा तू जानता है हमारे जाहिर और बातिन को। फिर इरशाद फरमाया कि मैं अब बीच में शुक्र भी अदा करते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक। कहते हैं तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे में मुझे इसहाक और इस्माईल अता फरमाए। बुढ़ापे में अल्लाह ने औलाद दे दी, सारी तारीफें उसके लिए। फिर इरशाद फरमाते हैं इन्ना रब्बी लसमीउ दुआ, बेशक मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है। आगे इरशाद फरमाते रब्बी जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती। ऐ अल्लाह मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाला बना। क्या ही मजा है अगर बाप बेटा एक साफ में खड़े होकर नमाज पढ़। क्या ही लुत्फ आए अगर बाप बेटा इकट्ठे हिराम बांध के तवाफ करें। क्या मजा याद आए अगर कभी बाप बेटा बेटियां अहले खाना सारे इकट्ठे हुजूर की बारगाह में हाजिर हो। क्या निराला अंदाज। मुझे भी नमाजी बना दे और मेरी रब्बना व तकब्बल दुआ। या अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले, इस दुआ को कबूल। रब्बना गफिर ली वाली वालिदैया। पिछली सारी दुआएं औलाद के लिए, अब कहा रब्बना गफिर ली वाली वालिदैया। ऐ अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे, उनकी बख्शिश कर दे। वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। और जिस दिन तो हिसाब ले उस दिन तमाम मोमिनों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह सबको बख्श दे हिसाब वाले दिन। सूरत शुअरा में आता हूँ और यहाँ से 2-3 आयात अर्ज करके अपनी बात समेटता हूँ। अल्लाह ताला ने इस सूरत में जनाब इब्राहीम की और दुआओं का जिक्र फरमाया। फरमाया हजरत इब्राहीम ने दुआ मांगी रब्बी हबली हुक्मम वाल्हिकनी बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह मुझे इल्म व अमल अता फरमा और मुझे नेक लोगों से मुलाकात करा। इल्म व अमल दे और जो सालिहीन है उनसे मिला। बड़ा खुश नसीब होता है वो शख्स जिसे इल्म भी मिले, अमल भी मिले और फिर सालिहीन की सोबत भी मिले। नेक लोगों की जिसे संगत नसीब हो। अच्छे लोगों के पास वो गली में कुछ संगतरे बेच रहा था ना, तो दरवेश अंदर बैठे थे तो आवाज लगा रहा था अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे, अच्छे संगतरे। तो बाबा जी को अंदर ही वजद हो गया। किसी ने कहा ये क्या हुआ? फरमाने लगे वो कह रहा है जिन्हां दे संग चंगे सानो तरे, अच्छे संग तरे, जिन्हां दे संग अच्छे सानो तरे। जनाब इब्राहीम की दुआ देखो, फरमाते रब्बी हबली हुक्मम वाल्हिकनी बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह हुक्म अता फरमा, माना मुफस्सिरीन ने किया इल्म व अमल अता फरमा। और ऐ अल्लाह मुझे उनसे मिला दे जो साले लोग हैं। ये दुआ मांगते हैं। फिर कहते हैं ऐ अल्लाह जो लोग मेरे बाद आए ना उनमें मेरी सच्ची नामवरी रखना। ऐ अल्लाह बाद वाले पिछले हमारा जिक्र करें तो जरा अच्छे लफ्जों के साथ करें। हमारे बाद हमारा जिक्र हो तो खैर के साथ हो। हमारी तालीम के लिए जनाब इब्राहीम दुआ करते हैं। फरमाते हैं कि पीछे इस तरह का छोड़ के जाना कि तुम्हें खैर के साथ याद किया जाए। यानी तुम कहीं बैठो तो लोग कहें क्या बात है, और उठ के जाएं तो लोग कहें क्या बात। लोगों के बीच हमारी अच्छी नामवरी हो। जनाब इब्राहीम दुआ मांगते हैं।